Hello students, welcome back. Class-8 Chapter 14. Chemical effect of electric current. In this chapter, students, we will discuss about electric current and its direction, structure of an atom, and conductor and insulator. What are the conductor and insulators? And electrolysis of water, electrical conductivity of a liquid, electroplating. All these phenomena we will discuss in this chapter. Let's start chapter 14. Chemical effect of electric current. Chemical effects of electric current. Electric current is the flow of electric charge through conductor. जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. द चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम. Now what is atom, students? Atom is the smallest unit of matter. किसी भी मैटर की smallest unit को हम क्या बोलते हैं? Atom. Let's study the structure of an atom. Slide में आपको जैसे दिख रहा है atom का diagram. This is the diagram or structure of the atom. Atom contains 3 subatomic particles: proton, neutron and electron. Proton and neutron are concentrated at the center of atom, that is known as nucleus of the atom. एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. उसके इस पार्ट को, एटम के इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. एटम्स के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव. यस. न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज. एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो एन एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल. इट डजंट कैरी एनी चार्ज. Electric current and its direction. The flow of electric current in a closed circuit is considered from positive terminal to the negative terminal. किसी भी क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है स्टूडेंट्स? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. दिस करंट इज आल्सो नोन एज कन्वेंशनल करंट. इस करंट को हम कन्वेंशनल करंट के नाम से भी जानते हैं. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स, these are the materials that allow electricity to flow through them. कंडक्टर ऐसे मटेरियल है which allow the electricity to pass through them. For example, iron, copper, silver, all these metals are good conductor of electricity. Insulators, these are the materials that do not allow electricity to flow through them. ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, that material are known as insulators. For example, wood, plastic, cotton, etc. These are the examples of insulator. Electrical conductivity. The ability of a material to conduct electricity is called electrical conductivity. A liquid that is a good conductor of electric current is called electrolytes. ऐसे लिक्विड जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे and which are good conductor of electricity or that liquids are known as electrolytes. And a liquid which is incapable of conducting electricity is called as non-electrolyte. For example, sugar solution. It is bad conductor of electricity or they are known as non-electrolytes. Electrical conductivity of liquids. Dear students, liquid में ऐसा क्या होता है कि they allow the electricity to pass through them? A liquid contains positive and negative charged ions. The flow of these ions conduct electricity in liquids. जो liquid positive और negative ions contain करते हैं, they allow electricity to pass through them.
because of flow of these ions, and the flow of current through liquid bring chemical change in the liquid. जब किसी भी लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके अंदर केमिकल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द टैप वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इट ब्रेक्स डाउन टू गिव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस. तो इसमें केमिकल रिएक्शन होगी, ये ब्रेकअप हो जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इसमें से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी. डियर स्टूडेंट, जो प्योर वाटर होता है दैट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट टैप वाटर कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज़ not a pure form of water. It contains some impurities so that it can conduct the electricity. Electrolysis. When electricity is passed through an electrolyte. जब एक इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे लिक्विड विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स. When electricity is passed through an electrolyte, it initiates chemical reactions that splits up the chemical compound present in electrolyte into its constituent substance. This process is known as electrolysis. Electrolysis क्या होता है? जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट में से, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दे. जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है और उसके अंदर जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है वो स्प्लिट अप हो जाता है, मीन्स ब्रेकअप हो जाता है अपने कंपोनेंट्स में. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस. लेट्स सी दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम. This is the diagram of an electrolytic cell. In this electrolytic cell, it contains a liquid which is known as electrolyte. बेटा जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि इस सेल्स को हमने एक सेल से कनेक्ट किया है ताकि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके. लिक्विड में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो अपने आयंस में ब्रेकअप हो जाता है. कैसे पास हो रहा है? देखो, दो इलेक्ट्रोड है जो सॉल्यूशन के अंदर डिप की गई है. पॉजिटिव रोड को हम क्या नाम देते हैं? एनोड. और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या नाम देते हैं? कैथोड. जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, पॉजिटिव रोड इज़ नोन एज एनोड एंड नेगेटिव रोड इज़ नोन एज अ कैथोड. एंड द लिक्विड दैट इज ब्रेकअप इनटू द its constituents or components that is known as electrolyte. After passing the electric current, the electrolyte or liquid break up into its constituents. This liquid is known as electrolyte. This process by which an electrolyte splits into its constituent when electric current is passed through it is called electrolysis. Now student, we will see the electrolysis of water. A setup for the electrolysis of water is shown in the diagram. वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हमें ये सेटअप करना पड़ता है. वी कनेक्ट द दिस वाटर विद अ बैटरी so that electric current can pass through it, as we can see in the diagram. When the electric current is passes through the water containing a small amount of sulfuric acid, दिस सल्फ्यूरिक एसिड इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर. वाटर में हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे जिससे वाटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर स्प्लिट अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. जब वाटर के अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वाटर ब्रेकअप हो जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में. वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं स्टूडेंट? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बनता है वाटर, H2O. वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है. द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड एट कैथोड. कैथोड हमने पढ़ा था क्या होती है. कैथोड इज अ विच टर्मिनल ऑफ सेल? दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, एंड एनोड इज द
positive terminal of cell, and the hydrogen gas are formed at cathode while the bubbles of oxygen gas are formed at anode. The electrolysis of water produce twice as much हाइड्रोजन एज ऑक्सीजन. जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के कंपैरेटिवली ज़्यादा डबल बनती है. दिस प्रोसेस इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. इस प्रोसेस को इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को ऑब्टेन करने के लिए. Electroplating, the process of depositing a layer of desirable material on any other material is called electroplating. It is generally used to protect various material from corrosion and to enhance the visual appearance of the object. Electroplating में dear students क्या करते हैं, हम एक desirable material की कॉट दूसरे material पर करते हैं. जैसे कि अगर हमने आयरन को रस्टिंग ज़्यादा लग जाती है और कॉपर लेस होता है रस्टिंग का प्रोसेस कॉपर में, इसलिए अगर हम आयरन के मटेरियल पे कॉपर की कोट करना चाहते हैं, कॉपर के एक थिन लेयर्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से हम कर सकते हैं. द मटेरियल टू बी कोटेड विद अ लेयर यूज एज अ एनोड एंड द मटेरियल ऑफ विच अ कोटिंग इज टू बी obtained is used as a cathode. Now we will see this electroplating with the help of a diagram. Let's see. Yes student, इस diagram में electroplating of copper is done on the metal spoon. जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है. इलेक्ट्रोलाइट भी हम उसी मटेरियल का लेंगे जिसकी हमने कॉट करनी है. जैसे कॉपर की लेयर हमने डिपॉजिट करनी है metal spoon पे, तो we will take the solution of copper sulfate and the copper is used as a rod of copper is used as a anode. कॉपर की एक रोड को हम एनोड की तरह यूज़ करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और जिसके ऊपर हमने कॉर्ड चढ़ानी है जिस मेटल के स्पून पे, उसको हम यूज़ करेंगे एज अ कैथोड. कैथोड कैसे बनाएंगे उसको, बाय कनेक्टिंग इट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, हमने मेटल की स्पून को किसके साथ कनेक्ट किया है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और कॉपर को हमने कनेक्ट किया, कॉपर की जो रोड है उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है. तो कॉपर वायर या कॉपर की रोड क्या बन गई, एनोड, और मेटल स्पून को हमने कैथोड बनाया है. इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है वो किसका यूज़ होगा, कॉपर सल्फेट का, क्योंकि हमने कॉपर की लेयर चढ़ानी है और उसी का ही हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट का. जब इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू होगा, देन कॉपर आयंस विल start depositing on the metal spoon. Yes student, this is all about chapter 14. I hope all concepts are clear to you. Have a nice day students.